welcome back to my channel. My name is Yastika. As you all know, I make videos related to beauty and all of that. So today video is all about this makeup look which I created for the event of Diwali. So in this video I'll be using very affordable drugstore makeup products, and I will be going to show step by step how did I achieve this look right here, right now. Products that I used, I am going to mention them in the description box. And this outfit, the details of the outfit and the jewelry I'm wearing, including this ring, I'm gonna mention all of the information in the description box. And today's look, I have kept it very simple, excluding the eye makeup. It's not that difficult, it's very beginner friendly. I have not put any falsies and just a nice coat of mascara, and all the base you're gonna see. So as you all know, I have not been making beauty related videos. This is my first video, so please be nice to me, and I hope you all like this video. I really hope and I would want to make such more and more and more videos. I really love doing it, but I just don't know the exact process, and I'm so new in this all of this, so it's hard for me to just sit down, make videos, chit chat and all of that, but it's gonna take time. But I really hope that you all like this video and just get that zeal to just dip your feet into the makeup and just get going. Let's just not chat much and get right into the video. Yeah, so I'll be seeing you at the end of the video. So first things first, I'm spraying rose water to moist my face. You can use any face mist you like. So किसी भी flawless makeup के लिए you have to make sure that your base is nice and perfect. So I'm just pressing my hands on my face so that the rose water sits in my face. And next I'm following with the moisturizer. I'm using Pond's gel moisturizer. I'm taking a generous amount so that my face is very well moisturized and very hydrated, because that's the first and basic step. And now I am mixing it with serum so that it gets more hydrated and my base looks very glossy and shiny and just smooth. And now I'm massaging the cream into my skin. You have to take your time to just massage your product. जितना मसाज आप करोगे उतने अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट होगा स्किन में, और उतने अच्छे से स्किन आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, जिससे आपका बेस अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ्रेश, स्मूथ और हाइड्रेटेड लगेगा. बहुत बारी ऐसा होता है जब हम मेकअप करते हैं, व्हेन वी अप्लाई फाउंडेशन, हमारा बेस बहुत केकी सा लगने लग जाता है. उस पर ऐसा लगता है कि आपने लेयर्स पे लेयर्स ऐड किया है. वो ना हो, उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें, जिससे एक इवन टोन आता है, एक स्मूथ सा टेक्सचर मिलता है. जस्ट लाइक कि हम किसी भी पेंटिंग से पहले कैनवस को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो स्मूथ रहे, उस पर कोई टेक्सचर्स ना हो, ताकि व्हेन वी अप्लाई पेंट ऑन दैट कैनवस तो वो एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आए. सो नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी प्राइमर. यहाँ पे इसको आई एम टेकिंग 2 to 3 pumps एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इन अ डॉटेड मोशन ऑन माई फेस. इससे मेरे फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा बिफोर आई अप्लाई फाउंडेशन, जिससे मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी लगेगा, बहुत हाइड्रेटेड और ग्लोई लगेगा. वैसे तो दिस इज़ नोन एज अ प्राइमर, बट आई लाइक टू यूज़ इट ऑन माई फुल फेस और ऑन द एरियाज आई वॉन्ट ग्लो. सो इसको मैं उस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम अप्लाइंग इट एंड मसाजिंग इट on my whole face, even on my neck. So you cannot just skip your neck whenever you are doing your makeup. You can just see it just adds so much glow to your skin. Such a nice shine, man. So now next I'm taking primer. I'm using Insight primer. I am going to take a very little amount of it, and I'm just applying it on the areas I have pores or I have open pore problems. So primer apply करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, you have to go around in circular motions. उससे आप प्रोडक्ट को अपने पोर्स में लॉक करते हो, जिससे आपका जो टेक्सचर है स्किन का वो स्मूथ
दिखेगा। एंड प्राइमर एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन योर फाउंडेशन एंड योर स्किन, जिससे आपका ऑयल सिक्रीशन या जो भी आपके ऑयल्स आते हैं या जो भी स्वेट आता है वो एक बैरियर के जैसे होता है, जिससे आपका फाउंडेशन हिलेगा नहीं, वो सेट रहेगा। सो नाउ आई एम टेकिंग अ कलर करेक्टर फ्रॉम NYBay, और जहाँ मेरे फेस पे बहुत एक्टिव से एक्ने थे उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ रेड एक्ने पे, जो मेरे एक्टिव एक्नेज हैं। एंड आई विल बी यूजिंग ऑरेंज करेक्टर जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है। सो अब यहाँ पे वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो हमने कलर करेक्टिंग लगाया है उसको हम अच्छे से ब्लेंड करें। अब नाउ आई एम टेकिंग फाउंडेशन ऑफ Maybelline Fit Me Matte एंड आई एम ऑल्सो मिक्सिंग सीरम इन इट, सो दैट ये मैट के साथ थोड़ा सा इसमें ग्लोई टेक्सचर मिल जाए। सो आई एम जस्ट अगेन अप्लाइंग विद द डॉटेड मोशन, और मैं इसको पूरा इवनली मतलब लगा लूँगी अपने नेक को भी। यू कैन नॉट फॉरगेट योर नेक इन योर एयर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फेस अलग से स्टैंड आउट करेगा और आपका नेक बहुत अजीब लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट। और यहाँ पे मैं मेकअप स्पॉन्ज है जो, उसको मैंने वेट कर लिया था विद द सेम मिस्ट आई यूज्ड इनिशियली ऑन माई फेस, उससे मैं उसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। एंड यू हैव टू गो इन डैबिंग मोशंस, यू डोंट हैव टू ड्रैग योर प्रोडक्ट, सो दैट वो नहीं, वैसे नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट डैब इट एंड यू हैव टू, और या मैं बीच में अपना लिप मॉइस्चराइज करना भूल गई थी, सॉरी। सो नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर। मैं इसको अपने जहाँ जहाँ पे मुझे कंसील करना है वहाँ पे लगा रही हूँ, एंड थोड़ा सा अपने डार्क स्पॉट्स पे। अगेन मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद अ ब्यूटी स्पॉन्ज, और मैंने उसको अगेन वेट किया है विद द सेम मिस्ट। एंड नाउ आई एम प्रेसिंग द प्रोडक्ट इनटू द स्किन। अगेन यू डोंट हैव टू ड्रैग, एंड व्हेनेवर यू अप्लाई कंसीलर यू हैव टू मेक श्योर कि आप 1 से 2 सेकेंड वेट करो, और मे बी 5 सेकेंड्स, तो उससे ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलता है आपको, रादर देन लगाते ही उसको स्प्रेड करने लग जाना। यहाँ पे अब मैंने कंसीलर लगा दिया, और मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया है वहाँ पे उसको मैं डैबिंग मोशंस में उसको इवन आउट कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है। और जो भी एक्स्ट्रा स्पॉट्स बचेंगे या एक्स्ट्रा एरियाज़ बचेंगे, जहाँ जो भी मेरा स्पॉन्ज पे जो भी प्रोडक्ट रहेगा, मैं उसको हल्का हल्का वहाँ पे थोड़ा सा कवरेज दे दूँगी, सो दैट जहाँ जहाँ पे मेरे स्पॉट्स हैं वो कंसीलर से कवर हो जाए। एंड यू कैन सी माई बेस इज़ लुकिंग सो नाइस। नाउ इट्स टाइम टू बेक, एंड फॉर बेकिंग आई एम यूजिंग Maybelline का Fit Me लूज पाउडर, वेल रिनाउंड। सो मैं अपने अंडर आइज़ को बेक करूँगी। आई मेक द पाउडर सेट फॉर लाइक, जब तक मैं अपना आई मेकअप नहीं कंप्लीट करूँगी, और फिर थोड़ा सा चिन पे ऑन द लेफ्ट ओवर ऑन द फोरहेड, जो भी जहाँ जहाँ पे भी यू फील दैट यू नीड बेकिंग, दैट्स इट। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं अपना जो ब्रश है वो डस्ट कर रही हूँ अपने फेस पे, थोड़ा सा, कि वो पाउडर से थोड़ा सा मैटिफाइंग लुक आ जाए, बिकॉज आई हैव एन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन बेब। नाउ माई बेस इज़ बेक्ड। So the next step is my brows, and for brows I'm using Maybelline का eyebrow pencil। यहाँ पे I'll be showing very quickly वही कि पहले draw करो and then fill। So यहाँ पे अब it's time for eyeshadow, और जो भी आई शेडोज़ मैं यूज़ कर रही हूँ मैं साइड पे उसका आइकन दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बेस को, आई बेस को एक इवन वो जो बेस देना है, उसके लिए आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट शेड विच इज़ द आई गेस स्किन कलर और बेज। नाउ आई एम गोइंग वेरी क्विकली विद द आई मेकअप। सो यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा जो पॉपिंग पिंक कलर है, बिकॉज यू गोना सी मेरा जो लहंगा था नीचे दैट्स इन अ पिंक शेड, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर लेके उसको थोड़ा सा उसको मतलब ग्रेडियंट बना रही हूँ विद इवनली स्प्रेडिंग इट आउट, थोड़ा सा शेप देके। किसी भी आई मेकअप का द की इज़ कि आपको उसको ब्लेंड करना है इवनली। तो यहाँ पे यू कैन सी नीचे की साइड पे द मोर यू कम क्लोज टू द आईलिड, वहाँ पे उतना ज़्यादा हार्श लाइंस नहीं है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हार्श लाइंस हैं। सो नाउ अभी मैं सिर्फ कलर को प्लेस कर रही हूँ, वही मैं दूसरी आँख में भी कर रही हूँ। आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर सो दैट अभी कलर बिल्ड होगा,
जब एंड में उसका रिज़ल्ट आएगा तब हम उसको ब्लेंड करेंगे सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना हो और हमारा जो आई शैडो है वो एकदम ब्लेंडेड सा लगे. सो यहाँ पे आई हैव डन प्लेसिंग द कलर. नाउ आई एम टेकिंग अगेन द सेम कलर और मैं उसको फिर से थोड़ा सा बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि ऊपर की साइड से द एरिया क्लोज टू माई आईब्रो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इवन आउट था, मिसिंग था, तो बस आई एम यूजिंग द सेम कलर टू बिल्ड इट. वंस आई फील द कलर इज़ डन विथ प्लेसिंग, मैंने सेकेंड पैलेट लिया है अगेन फ्रॉम द स्विस ब्यूटी और इसमें से जो कलर को मैंने फोकस दिया है उस कलर को मैं यूज़ कर रही हूँ टू एड द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजिशन. लाइट से थोड़ा सा लाइट कलर, डार्क से थोड़ा सा लाइट कलर में जाने में. तो मैं यहाँ पे बहुत एक लाइट सा न्यूडिश कलर ले रही हूँ and I'm just going to add a bit of transition near the brow bone. You guys know the process, so I'm going to do that in the second eye as well. और यहाँ पे just the process of blending and blending till the time you don't achieve the desired look. Again, I'm using the Nika K palette. I'm using the darkest blue, a bit matte, and I'm going to draw an inverted V at the end of my eye to create that smoky blue effect. अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि why I'm using the pink and blue combination because my outfit is in the same color. So यहाँ पे I just smoked out the blue and now मेरे पास एक बहुत पुरानी सी पैलेट पड़ी थी. It's so old कि उसका नाम वाम कुछ नहीं है. तो वहाँ से I just picked एक पिंक सा ग्लिटर सा आई शैडो एंड आई जस्ट प्लेस्ड इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज तो थोड़ा सा वो ग्लिटरी सा लगे. देन आई रियलाइज्ड कि स्विस ब्यूटी में जो मैं पैलेट्स आपको बता रही हूँ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शिमर शेड्स थी. तो यू कैन ईजिली फाइंड एनी पिंक शिमर शेड in any of the eye palette. That's very common to find. And now I'm taking the same palette, the first palette, and taking the pink and the blue color to add to the lower lash line to give that to complete the eye look. Just इसको नीचे लगा के you can get the look of a coal. And you have to place the color and then eventually you have to smoke it out to give that smooth finishing to your eye makeup. Now the time to curl your lashes and I'm using the bronzer color and this is the holy grail. I've never found such a useful and such a perfect eyelash curler for me. And now it's time for mascara, and for mascara I'm using Nykaa's mascara. And now for bronzer, I just used Sivana palette and now I'm going to sculpt my face, give a structure to my face, add some depth, and I'm just I'm just bronzing my face on the areas I want my face to have a definition or a structure or a depth effect. So like according to your face shape you can just use a bronzer or contour. I personally don't like the contour effect because it's very harsh, and now you have to make sure that you blend your bronzer or your contour very well and nobody is able to see those brown harsh lines. It looks very 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 disturbing. It's a very disturbing sight to watch. And now for the blush, I'm taking the blush on the more peachier side because I am from fair to medium skin tone and such shades of blushes suits our Indian skin tone very 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 nicely. So I'm just giving a nice flush of blush to my face. Flush and blush. Wow, sounds so
poetic. So yeah, I am almost done with the blush, and you can just see the life it just added to my face. And now बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने इनर कॉर्नर में क्या लगाया हुआ है. So for your whole information, ये मैंने when I was doing my eyeshadow, I just realized that I had a lot of fallouts. So मैंने concealer लगा लिया था, and don't worry, I'll just blend it out in the end, and you're gonna see. So yeah, this is my final look, and I hope you just like the glimpse. So I hope you all liked the video, and if you did, please like my video, comment, and just share and subscribe to my channel. I would be really happy, and I really hope this Diwali brings a lot of joy, happiness in your lives. What more to say? Well, nothing. I just hope that you guys prosper in your life. From my side, a very happy and prosperous happy Diwali to all of you in advance. So I'll be seeing you in the next video. Till then, bye bye, take care. And yeah, one more thing, I am loving the way I look. Just look at it. I hope you all guys can recreate this look, and if you would, please don't forget to tag me, and you can find my Insta handle on the cover photo of my YouTube banner. So until next time, just take care, have a good Diwali. Bye bye, I love you guys.